السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں رات کو ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک لڑکی روزانہ رات 12 بجے ٹیکسی میں بیٹھتی اور قبرستان چلی جاتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا، لیکن وہ مجھے 5 گنا کرایہ ادا کرتی، اس لیے میں خاموش ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی طے ہو گئی۔ میں نے شرط رکھی کہ لڑکی پردے دار ہو۔ شادی طے پا گئی۔ پہلی رات خوشی خوشی جا کر گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو قبرستان والی۔ آج میری شادی تھی اور میں بہت خوش تھا، کیونکہ خاندان بھر میں واحد میں ہی کمارا رہ گیا تھا جو طعنے سنتا تھا۔ اس لحاظ سے میں بھی آج عنقریب شادی شدہ کی فہرست میں شامل ہونے والا تھا۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی اور ہمارے خاندان میں لڑکے 25 کے ہونے سے پہلے ہی شادی کر چکے ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے میری شادی خاندان بھر کا ایک اہم موضوع بن چکی تھی۔ ہر کوئی اٹھتے بیٹھتے مجھے طعنے دیتا کہ کس حور پری کی تلاش میں ہو تم، جو اپنی عمر ضائع کیے جا رہے ہو۔ حالانکہ لیٹ شادی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، اور میں نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب تک میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ اور دوسری میری شرط یہ تھی کہ لڑکی پردے والی ہو اور حیا والی ہو۔ ان دونوں شرطوں کے پورا ہوتے ہوتے میں عمر کے 30ویں سال میں پہنچ گیا۔ آخر میری پسند کی خوبی والی لڑکی امی نے ڈھونڈ نکالی اور بہت جلد ہی شادی طے ہو گئی۔ لڑکی والوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ 1 سال سے پہلے لڑکا طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا کیا تو اس کے گھر کی ملکیت لڑکی کے نام ہو جائے گی۔ میں نے بھی سوچا کوئی بات نہیں، لڑکی والوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے تحفظ کا سوچیں۔ یوں بغیر کسی رکاوٹ اور بدمزگی کے میری شادی طے پا گئی اور ہو بھی گئی۔ میں نے دلہن کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور شادی والے دن بھی وہ گھونگھٹ میں تھی۔ دلہن کی والدہ کہنے لگیں کہ ہماری بیٹی بہت ہی باحیا اور باپردہ ہے، اسے کسی غیر مرد نے آج تک نہیں دیکھا۔ خیر شادی کی رسمیں ہوئیں اور دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھایا اور دلہن کا چہرہ دیکھا تو میں چونک گیا۔ اگرچہ اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ وہی تھی۔ میں حیرت سے چلایا، تم؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے بھی جیسے امید نہیں تھی۔ میں پل بھر میں 8 ماہ پہلے کے مناظر یاد کرنے لگا جب اسی لڑکی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میرا نام احسن کمال ہے اور میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں۔ جب میں نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگا تو میری پڑھائی میرے کسی کام نہ آئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں۔ 2-3 سال نوکری کے پیچھے دھکے کھا کھا کر آخر میں نے سوچا کہ مجھے اب اس شوق کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا پڑے گا جس سے روزی روٹی کا سبب پیدا ہو جائے۔ اس لیے صبح کو میں پرائیویٹ نوکری کرتا اور رات کو میں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی۔ رات کے وقت فائدہ یہ ہوتا تھا کہ رش کم ہوتا تھا اور سواری ملنے کا امکان بھی کم ہوتا تھا، تو گاہک منہ مانگا کرایہ دینے پر بھی راضی ہو جاتے تھے۔ مجھے 6 ماہ ہو گئے تھے ٹیکسی چلاتے ہوئے، جب ایک رات 12 بجے ایک لڑکی میری گاڑی میں بیٹھی اور بولی، قبرستان لے جاؤ۔ میں نے چونک کر لڑکی کو دیکھا۔ وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں مربوط تھی اور کالی چادر کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ اس وقت قبرستان کون جاتا ہے؟ میں تو ڈر گیا کہ کہیں وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولی، گاڑی سٹارٹ کر لو، 5 گنا زیادہ کرایہ دوں گی۔ 5 گنا زیادہ کرایہ کا سن کر میں خاموش ہو گیا اور اللہ کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ قبرستان کے گیٹ پر میں نے گاڑی روکی، وہ اندر چلی گئی اور مجھے کہا، آدھا گھنٹہ انتظار کرنا، میں آتی ہوں۔ میں باہر انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تو اس نے چادر سر پر لی ہوئی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں، کیا کرنے آئی ہو اس وقت؟ مگر پھر میں خاموش ہو گیا کہ میں ایک ڈرائیور ہوں اور میں یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ شاید اس نے میرے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے خود ہی کہنے لگی، میرے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں
दिन भर मैं अपने दफ्तर में मसरूफ रहती हूँ। शाम को आकर घर के 100 काम होते हैं, इसलिए फातिहा पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, तो मैं इस वक्त आ जाती हूँ। मैं चुप रहा और उसे वापस छोड़ दिया। अगले दिन फिर 12 बजे टैक्सी चलाते हुए इत्तेफाक से वही लड़की टकराई और कल की तरह 5 गुना ज्यादा किराए पर कब्रिस्तान ले गई और आधे घंटे बाद बाहर आई। मुझे हद से ज्यादा हैरत थी कि ये फातिहा पढ़ने का कौन सा वक्त है भला। वो घर बैठकर भी तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकती है, इसलिए मैं चुप ही रहना पसंद करता था। अगले दिन मैं 12 बजे वहां से न गुजरा, क्योंकि 1 घंटा पहले ही मैं वहां से सवारी लेकर रवाना हो चुका था। जब मैं गाड़ी लेकर 1 बजे वापस जा रहा था, तो मैंने उस लड़की को एक और टैक्सी से उतरते देखा। यानी वो रोज कब्रिस्तान जा रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं ही इसे रोजाना ले जाया करूं, तो मुझे रोजाना बहुत मुनाफा हो जाएगा। पहले 2 दिन तो वो इत्तेफाक से मिल गई थी, लेकिन अब वो लड़की रोज 12 बजे मेरी टैक्सी में बैठती थी और अपने मामूल के मुताबिक फातिहा पढ़कर वापस आ जाती। मैं इतनी देर बाहर इंतजार करता रहता। मर्द होकर आधी रात को मैं कब्रिस्तान जाने का नहीं सोच सकता था, लेकिन वो एक लड़की होकर जाने कैसे इतनी हिम्मत कर लेती थी। मैंने और उसने आपस में कभी कोई बात भी नहीं की थी। ये मामूल तकरीबन 2 माह चलता रहा। फिर मैंने ही टैक्सी चलानी छोड़ दी, क्योंकि 1 साल में ही टैक्सी चलाकर मैंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे कि मैं अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकता था, और मैंने ऐसा ही किया था। अल्लाह का करम हुआ कि 3-4 माह में ही मेरा कारोबार चल निकला और उसके साथ ही मेरी शादी की बातें होने लगीं और शादी हो गई। मुझे क्या मालूम था कि मेरी शादी उसी लड़की से हो रही है। मैंने कौन सा तस्वीर देखी थी जो मैं शादी से पहले देख पाता। मैंने तो अम्मा को पर्देदार लड़की का कहा था, फिर ये लड़की उनको कहाँ से मिल गई? उसने तो तब मुझे कहा था कि उसके माँ बाप वफात पा चुके हैं, जिनकी फातिहा पढ़ने वो जाती थी। फिर ये सब क्या था? मैं उस लड़की के सामने खड़ा यही सब सोच रहा था कि यकदम होश में आया और उसका बाजू पकड़कर सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? वो घबरा गई, लेकिन फिर एकदम ही मजबूत लहजे में बोली, मैं बीवी हूं आपकी, और कौन? मैं उसको यूं पैंतरा बदलते देखकर बहुत हैरान रह गया। मैंने पूछा, तुम वही हो ना जो मेरी टैक्सी में बैठती थी? कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आज आपको पहली बार देख रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे उसका झूठ सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने बुलंद आवाज से अम्मी को आवाज देकर कमरे में बुलाया और उनको उस लड़की की सारी कहानी सुनाई। वो हैरानगी से सुनती रहीं, फिर कहने लगी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। बहू के माँ बाप भी जिंदा हैं और ये उस इलाके में भी नहीं रहती जहाँ का तुम जिक्र कर रहे हो। अम्मा तो मुझे समझा बुझाकर चली गईं, मगर मुझे यकीन नहीं था कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि जिस तरह मैं उसे देखकर चौंका था, वो भी मुझे देखकर चौंकी थी, यानी पहचान गई थी। कौन थी वो और मेरी जिंदगी और घर में किस मकसद से घुसी थी? ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं उसे तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि ऐसा करता तो घर उसके नाम हो जाता। मुझे 1 साल उसे बर्दाश्त करना ही था। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके तलाक दूं, तो मेरी जान भी जल्दी छूट जाएगी और घर भी बच जाएगा। वो तो कपड़े बदलकर आराम से लेट गई थी, जबकि मैं सारी रात सोचता रहा। सुबह हुई तो मैंने एक बार फिर अम्मा से बात करके समझाने की कोशिश की कि ये लड़की और उसके घर वाले धोखेबाज हैं, कुछ गड़बड़ है, मगर अम्मा ने तो मेरी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। अब मुझे खुद ही कुछ करना था। बीवी के घर वाले आए थे और वो सब कमरे में बंद जाने क्या बातें कर रहे थे। मैं दोपहर को घर से निकल गया ताकि मालूम कर सकूं कि क्या हकीकत है। सबसे पहले मैं उस जगह गया जहां से वो मेरी टैक्सी में बैठा करती थी। ये आधे साल पुरानी बात है और मुझे ये तक मालूम नहीं था कि वो किस तरफ से आती थी। मैं आसपास की इमारतों में घूम फिरकर पता करने की कोशिश करता रहा, मगर उस नाम की लड़की का किसी को इल्म नहीं था। कुछ हाथ न लगा तो मैं मायूस होकर घर वापस आ गया।
घर गया तो अम्मी ने बताया कि रस्म के मुताबिक वो अपने घर गई है, अब तुम कल उसे जाकर ले आना। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया कि मैं कैसे उसके राज को मालूम कर सकता हूँ। अगले दिन मैं फूल और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर गया। उसके घर वाले मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। मैंने अपनी बीवी को कहा, आई एम सॉरी, शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी, तुम वो लड़की नहीं हो। मेरी माजरत पर वो हैरान नजर आई, मगर चुप रही। मैं उसे घर ले आया। मैं नहीं चाहता था कि उसे मुझ पर शक हो। मैंने उस पर और उसके घर वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने उसे बात करते सुना। वो मेरे बारे में कह रही थी, वो सब जानकर भी खामोश हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप फिक्र न करें, उसे इतना सताऊंगी कि वो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा और इस घर की मिल्कियत फिर खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। तो ये प्लान था इसका। वो इस मकसद से मेरी जिंदगी में आई थी। अब तो उसकी पिछली जिंदगी के बारे में मालूम करना और भी जरूरी हो गया था। मैंने उसके घर वालों के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या वाकई वो मेरी बीवी के माँ बाप ही हैं। एक हफ्ता लगाकर सारी मालूमात मेरे सामने थीं और मैं दंग रह गया था। मैंने सब घर वालों के सामने सारे सबूत रख दिए। मैंने बड़ी कोशिशों के बाद उन दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी, जब वो रात 12 बजे टैक्सी में बैठती थी। खुशकिस्मती से सड़क किनारे लगे कैमरे में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था कि वो रात 12 बजे एक टैक्सी में बैठ रही थी। मेरे इन सबूतों पर उसका रंग फक हो गया और मेरी माँ बेचारी अपनी जगह सुन रह गई। वो मुझे गलत और अपनी बहू को ठीक समझ रही थी, और अब जब पता चला कि मैं शादी के पहले दिन से ही ठीक कह रहा था, तो उन्होंने निहायत अफसोस से अपनी बहू को देखा और वहां से चली गई। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, अभी तो मैंने अम्मा को ये नहीं बताया कि तुम लोग फ्रॉडिया हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो और वहां से फरार हो जाते हो। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, तुम अब अपने माँ बाप के साथ जेल जाओगी। वो रोते हुए कहने लगी, वो मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे ताया ताई हैं। मेरे माँ बाप के बाद उन्होंने ही मुझे पाला, और जब मैं बड़ी हुई तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सारा खानदान ही ताया ताई से नाराज रहता था, क्योंकि वो सबके साथ फ्रॉड कर चुके थे और किसी को पैसे नहीं देते थे। वो मुझे लेकर दूसरे शहर आ गए। वो जो कहते मुझे करना पड़ता, वरना ताई मुझे सजा देती थी और घर से निकाल देती थी। एक बार उसने मुझसे हमसायों के घर में चोरी करवाई और वीडियो बना ली। जब मैं उसको किसी गलत काम से इनकार करती तो वो कहती कि मैं वो वीडियो पुलिस में दे दूंगी। मजबूरी में मुझे वही करना पड़ता जिसका हुक्म होता। फिर ताया और ताई ने बड़ा हाथ मारा। वो पीर बनकर लोगों को लूटने लगे। कुछ अमीर और बेवकूफ लोगों को वो कहते कि तुम्हारे माल पर बंदिश हुई है, तुम माल का सदका दो, कब्रिस्तान जाकर फलां दरख्त के नीचे इतना सोना रखाओ या इतने पैसे सदके में रखाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बेवकूफ लोग ऐसा ही करते। वो सारी चीजें रात को मुझे कब्रिस्तान से निकाल कर लानी पड़ती थीं, क्योंकि दिन के वक्त वहां रश होता था और कोई देख न ले, इसलिए रात को मुझे वहां भेजा जाता। 2-3 महीने ताय का फ्रॉड चलता रहा। फिर लोगों के सामने उनकी हकीकत खुल गई और हम सबको अफरा तफरी में फरार होना पड़ा। दूसरे इलाके में आकर उन्होंने नया खेल खेलने का सोचा कि मेरी मंगनी और शादी के बहाने अमीर लोगों को लूटा जाए। मेरी 3-4 बार मंगनी करके उन्होंने तोड़ दी और ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लिया। इस बार उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, 2 माह के अंदर अंदर घर से सारी नकदी और जेवर समेट कर कुछ ऐसा करना कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए और तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाए। इस तरह उस घर की मिल्कियत तुम्हें मिल जाएगी। मैंने शादी की रात ही तुम्हें पहचान लिया था, इसलिए चुप कर गई। मैंने आज तक जो किया और अभी तक जो कर रही हूँ, सब उन्हीं के कहने पर, वरना मैं इस जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। उसकी कहानी सुनकर मुझे अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि जो होना था वो हो गया और अब मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने सारे सबूत पुलिस में देकर उसके ताया और ताई को गिरफ्तार करवा दिया।
میں نے ان سارے حالات میں کوشش کی تھی کہ میری بیوی کا نام نہ آئے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے تایا تائی گرفتار ہو چکے ہیں، 5-6 سال تو سزا ہو کر رہے گی ان کو، تو مجھے اپنی مرضی بتا دو، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا آزاد ہونا چاہتی ہو؟ اگر طلاق لینا چاہو گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ اس گھر کو تمہارے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی وفادار اور تابع دار بن کر رہوں گی۔ اس کے ماضی کے بارے میں صرف میں اور میری امی جانتے تھے، اور انہوں نے ہی مجھے اس کی مدد کرنے کو کہا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری نیکی خدا کو بہت پسند آئی۔ اس نے میرے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دیا اور میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔